Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. From last few days we were discussing about this story Rustam and Sohrab. Now today we will start this story from this paragraph. Let us start. The generals say he is a beardless youth. He fights with remarkable courage and daring. His name is Sohrab. They say his ambition is to fight you and defeat you. He has sent word asking us to choose a champion from among us to meet him in single combat. You are our champion and savior. Will you go and fight him? But I am old, your majesty, and I have an aged father to look after. Could not you find a younger man who to fight this youth? Asked Rustam. If I had been able to find a younger champion, I would not have called you away from your aged father. Unless you fight this youth, we have no hope of saving our country. What a misfortune for Parisa that she should be forced to turn to an old man to defend her, said Rustam. If I must go, I will go to the battle as a plain soldier wearing plain armor. He let no one know that old Rustam had to be called to fight a beardless boy. So Rustam rode to the battlefield. One of the Persians approached him and said, "O Rustam, like the might is this young man's. He has the wild stag's foot, the lion's heart, and he is young, and Iran's chiefs are old. Or else too weak, and all eyes turn to thee. Come down and help us, Rustam, or we lose." When Rustam heard these words of praise, he wished with a longing heart that the Tatar youth had been his own son. Rustam went and stood in front of the enemy soldiers and called out to Sohrab. Sohrab came out to meet him. As Rustam saw him, he felt a deep pity for the brave youth. "Oh Sohrab," he said, "why do you wish to hurry to your death? Take my advice, leave the Tatar army and come to Parisa and be as a son to me." I will explain it. जब बादशाह ने इस रुस्तम को बुलाया कि एक सोल्जर आया, तातार का सोल्जर आया, वो हमारी कंट्री को बर्बाद करना चाहता था, तो इसने इतने असने में रुस्तम ने कहा कि वो कौन सा ऐसा नादान था जो फ्रांस को हमला कर सकता है, रुस्तम ने पूछा। तब द जनरल से ही इज़ अ बियर्डलेस यूथ, जनरल ने कहा कि वो बिना दाढ़ी वाला नौजवान है, वो शानदार हिम्मत और बहादुरी के साथ लड़ता है, उसका नाम है सोहरब। वो कहते हैं कि उसकी मर्जी है कि वो तुमसे लड़ाई करे और तुम्हें हार दे। उसने हमें पैगाम भेजा है कि अपने में से एक अजीम जंगजू चुने जो उसके साथ एक इनफिरादी लड़ाई लड़े। तुम हमारे अजीम जंगजू हो और मुहाफिज हो, क्या तुम जाकर उनके साथ लड़ोगे? लेकिन बादशाह सलाम, लेकिन इसने कहा, किसने? रुस्तम ने कहा, इफ़ आई हैड बीन एबल टू फाइंड यू, इसने कहा कि मुझे एक मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरे पास देखभाल करने के लिए मेरे उम्र रसीदा बाप है। Could you find a younger man to fight this youth? asked Kusum. इसने कहा, क्या आप उस नौजवान से लड़ाई लड़ने के लिए उम्र में छोटे किसी आदमी को नहीं ढूंढ सकते हो? रुस्तम ने कहा कि तुम मेरे जैसे किसी नौजवान को चुनो और इसके साथ लड़ाई करे। अगर मैं उम्र में से छोटा कोई जंगजू ढूंढ पाऊंगा तो मैंने तुम्हें तुम्हारे
उमर रसीद वाले से दूर नहीं बुला सकता। जब तक तुम इस नौजवान से लड़ाई नहीं लड़े हमारे पास मुल्क को बचाने की कोई उम्मीद नहीं है। बादशाह ने उससे कहा कि अगर मेरे पास कोई नौजवान जंगजू था आप जैसा तो मैं आपको क्यों दूर करूँगा इस उमर रसीद बाप के साथ। तो हमारी कंट्री का वाहिद बचाव है सिर्फ तुम। What a misfortune for Parisa that she should be forced to turn an old man to defend her. रुस्तुम ने कहा क्या बदकिस्मती है कि इतना क्या बदकिस्मती है हमारे मुल्क को फ्रांस को कि ये फोर्स करता है मुझे कि आप अपने बाप को बूढ़े बाप को उधर ही छोड़ो और आप जंग के लिए जाओ। But if I must go, अगर मुझे जाना ही है I will go to the battle as a plain soldier wearing plain armor. अगर मुझे जाना भी है बैटल फील्ड में लड़ाई के मैदान में मुझे इस तरह जाना है as a plain soldier or wearing plain armor. मुझे अच्छी तरह से जाना है सोल्जर बन के जाना है आर्मोर पहन के जाना है। Let no one know that old Rustam had to be called to fight beardless boy. इसी तरह कोई नहीं जानता है कि और इस रुस्तम को बुलाया गया कि आजा तुम इस नौजवान के साथ लड़ाई लड़ो। सो रुस्तम रोड टू द बैटल फील्ड इसलिए रुस्तम ने फैसला किया कि वो चला गया बैटल फील्ड में जंग के मैदान में गया। फ्रांस के लोगों में से एक उसके पास आया और बोला फ्रांस के लोगों में से एक आया उसके पास और उसको कहा क्या कहा ए रुस्तम तुम्हारी ताकत के जैसे ही इस नौजवान की ताकत उसके पास है जंगी बारहसिंगा जैसी रफ्तार और शेर जैसा दिल और वो है जवान और ईरान के सरदार हैं उमर रसीदा या फिर हैं बहुत कमज़ोर और सभी आंखें लगी हुई हैं तुम पर। नीचे आओ और हमारी मदद करो नहीं तो हार जाओगे हम। जब रुस्तम ने तारीफ के ये अल्फाज सुने तो उसने ख्वाहिश भरे दिल से तमन्ना की कि काश वो तार नौजवान उसका अपना बेटा होता। रुस्तम जाकर दुश्मन फौजों के साथ सामने खड़ा हुआ और उसने सोहराब को चैलेंज किया तुम आओ। सोहराब उससे मुकाबला करने के लिए बाहर आया। उसने उनको चैलेंज दिया कि ये कौन सा शख्स है जो मुझसे लड़ना चाहता है तुम इसको बोलो आओ सामने आओ बैटल फील्ड में लड़ाई लड़ने के लिए। जब उसने ये बोला तो रुस्तम आया तो सोहराब आया तो जब रुस्तम ने उससे देखा तो उससे इस बहादुर नौजवान के लिए बहुत तरस महसूस हुआ। उसने जब उसको देखा सोहराब को देखा उसको बहुत तरस आया। ओ सोहराब उसने कहा रुस्तम ने कहा उसको ओ सोहराब तुम मौत की इतनी जल्दी क्यों बुलाना चाहते हो तुम क्यों लड़ाई बैटल फील्ड में लड़ने के लिए आए मेरे पास। मेरी बात मानो तो तार फौज छोड़ दो। अगर तुम मानोगे मेरी बात तुम तार फौज छोड़ दो और फ्रांस आ जाओ और मेरे साथ आ जाओ और मेरा बेटा बनकर रहो। जब सोहराब ने रुस्तम की जोरदार आवाज़ सुनी तो उसने सोचा कि शायद ये उसके बाप की आवाज़ थी। उसने वो रुस्तम के नज़दीक गया और बेताबी से पूछा क्या तुम रुस्तम नहीं हो बोलो क्या तुम वही नहीं हो। Dear students, the rest of this story we will read in next class. Thank you.